بائبل کیا والے مجھے بائبل دکھ رہے اوپر بھائی آدھے نہیں بڑے سیانے ہونے پر چچا کا آگے لگتا بھائی ہمیں سمجھ نہیں لگتی پہنانی ہے بائبلہ باتیں دیتے ہیں بھائی نہیں ہونے نہیں ہالیلویا کتنے لوگ یہ وش ہے کہ خدا خدا یسوع مسیح ان کی زندگیوں میں آئے ان کے گھر میں وزٹ ہو خدا یسوع مسیح کا کتنے لوگ چاہتے ہیں ہاتھ دکھاؤ امین اور کتنے لوگ یہ پرے کرتے ہیں وہ ہاتھ دکھائیں امین سنو کلیسیا جو آپ مانگتے ہو جو آپ اس سے کہتے ہو آپ کو اس کا طریقہ کار پتا ہونا چاہیے جو آپ بھی بیٹھ جاؤ اب مان لو آپ وش رکھتے ہو کسی کی کہ وہ ہمارے گھر میں آئے اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ اس کی نیچر کس طرح کی ہے جب وہ میرے گھر میں آئے گا کس بات سے خوش ہوگا کون سی بات اسے اچھے لگے گی میرے کس کام سے وہ خوش ہوگا اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جس کی آپ وش کرتے ہو وہ ہمارے گھر میں ہے تو جب آپ کے گھر میں آئے تو آپ اسی کو ناراض کرو امین آپ کو پتا ہونا چاہیے اور کس طرح وہ گھر آتے ہیں کیونکہ میں نے بہت سے مسیحوں کی یہ پریز سنی ہے او خدا میرے گھر میں آ میری زندگی میں آ جس طرح تو زکئی کے گھر میں آیا تھا میرے گھر میں بھی او خدا جس طرح تو ابراہیم اور سائرہ کے پاس آیا تھا او خدا تو میرے پاس بھی آیا نا بول کے آیا نا آج بھی وہ اسی طرح کا خدا ہے جس طرح وہ سائرہ اور ابراہیم کے پاس گیا تھا جس طرح وہ زکی کے گھر گیا تھا آج بھی جا سکتے ہیں آج بھی وہ آ سکتے ہیں آج بھی وہ آپ کے گھروں کا وزٹ کرتے ہیں مردہ لوگ آتے جاتے نہیں لیکن جو زندہ ہیں وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں امین تو آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ کس طرح کا مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے کہ خدا میرے گھر میں ہے اور بائبل مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے شمعون نام کا ایک شخص تھا جس کے گھر میں خدا یسوع مسیح گئے آئے نا امین ان کے گھر میں جب گئے تو لکھے یسوع مسیح وہاں پہ جب جا کر بیٹھے تو یسوع مسیح جب بیٹھ گئے وہاں پہ ایک عورت آئی جو عورت بائبل بتاتے ہیں وہ عورت بدکار تھی وہ عورت کسبی تھی غلط ریلیشن رکھنے والی تھی اس کا بزنس ہی تھا وہ کسبی تھی تو جب اس کے گھر میں آئی تو جب اس نے یسوع کو دیکھا تو بائبل بتاتے ہیں وہ یسوع کے قدموں میں گر گئی اور اس کے آنسو اس طرح نکل رہے تھے اس طرح وہ رو رہی تھی کہ روتے روتے وہ اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھونے لگی اب وہ ساری ضیافت کا خرچہ جو ہے وہ شمعون نے کیا تھا کتنے لوگوں نے پڑھے ہاتھ دکھائیں وہ ساری ضیافت کا خرچہ وہ سب کچھ کھانا پینا اس نے کیا تھا یسوع مسیح جب دنیا میں تھے کچھ لوگ تو یسوع مسیح کو اس لیے اپنے گھر میں لے کے جاتے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ فیمس ہے لوگ ان کو پیار کرتے ہیں لوگ بڑی ایک نام ہے یسوع مسیح کا تو جب یسوع مسیح میرے گھر میں آئے گا تو میں لوگوں کو یہ بتا سکوں گا کہ جس کا بڑا نام ہے میرا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے جس طرح لوگ ایک ایم پی ایم این اے کو گھر میں بلا کے ایک سیلفی اس کے ساتھ بنا کر اپنے کار سے ٹانگ دے میں جانتا ہوں اس کا تعلق میرے ساتھ ہے ایک بار بلاتے اسی لیے کہ میری سیلفی اس کے ساتھ بن جائے لوگوں کو پتا چل جائے کہ بھئی یہ بھی تعلق ہے ایم پی ایم این اے کچھ لوگ اس لیے ہو رہتے ہیں اب یہ جو شمعون نے بلایا اسی لیے اپنے گھر میں یسوع مسیح کو بلایا تھا جب وہ عورت پاؤں دھو رہی کلمہ پڑھو
आप भी आइए, आप आ जाओ, आप नाजिया आप आ जाओ, इनकी वाइफ पे बुलाते हैं। अब ये थोड़ा साइड पे। सभी ने खुदा ने मुझे बोल कर कहा कि मैं आपको बताऊं, आप भी आ जाओ, अरमान आप भी आ जाओ, अकील आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। सभी ने अब हुआ क्या? मैं कहता हूं कि वो सीन जब आप सुनोगे आपकी आंखों के सामने उसी तरह आप यहाँ पे आ जाओ। दानिश आपका नाम है? अब सुनो, इन्होंने ज़ियाफत की, ये शमौन है, कौन है? शमौन। अंसर आप भी आ जाओ, गुफाम आप भी आ जाओ। अब इन्होंने ज़ियाफत की, मान लो यहाँ पे खाना लगा हुआ है, उस वक्त जब बनाया जाता है, अभी ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं। स्टेज का मैं इसलिए कम लोगों को बोला। अब ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं और ये शमौन है, इसलिए यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। जब अपने घर में बुलाया तो यीशु मसीह बैठे, ये थोड़ी देर के लिए मान। अब ये मई में इन्होंने क्या किया, ये दौड़ती हुई आई और अपने किसी के सामने बोली, यीशु के पांव में गिर गई। और यीशु के पांव में गिरी जब हम बाइबल को उसको देखते हैं, यीशु मसीह में से एक ऐसा मसा निकलता था, एक ऐसी कुदरत निकलती थी कि वो जिसके पास जाते थे उससे अपनी गलतियां ऑटोमेटिकली इस तरह नजर आती थी। उससे पता लगता था कि मैं कहां से गलत हूं, मैं कहां से ठीक हूं। बगैर किसी के बताए वो खुद अपने गुनाहों और अपनी गलतियों को देखता था। और ये हवाला में बाइबल के उसमें मिलता है, जब पतरस की कश्ती में यीशु मसीह बैठे तो पतरस ने कहा कि खुदा चला जा, मैं बड़ा ही गुनाहगार। हालांकि पतरस की नेचर जब हम देखते हैं तो इस तरह की नेचर वाला बंदा जल्दी अपनी गलती को मानता नहीं, जो बंदा इस तरह का जज्बाती होता है। अब इसने क्या किया, इसे पता था कि कहीं वहां पे गिरी, इसने रोना शुरू कर दिया। तो शमौन यहाँ पे सोच रहे हैं, जब वो रो रही है, यीशु मसीह के पांव पर गिरी है, यीशु मसीह से कुछ नहीं कह रहे, कोई मना नहीं किया, यीशु मसीह खामोश है, यीशु मसीह कोई बात नहीं कर रहे। तो जब वो पांव धो रही थी, उसने अपने बालों से पोंछना जब शुरू किया तो ये बात शमौन को बुरी लगी। शमौन ने कहा, नो, ये खुदा का बेटा नहीं हो सकता। अगर ये खुदा का बेटा होता तो इससे पता होता कि ये औरत क्या है, किस तरह का कैरेक्टर रखती है। हमें पता है, इसे नहीं पता। अब ये बात शमौन अपने ज़हन में, अपने दिल में ये बात उसके अंदर चल रही थी, उसने बोल कर नहीं कहा यीशु को। अब यीशु मसीह तो फिर की बातों को आप क्या सोचते हो, आप अपने क्या इरादा किए, वो सब कुछ जानते हैं, उससे कुछ छुपा नहीं, सब कुछ उसके सामने खुला हुआ है। हमारी जिंदगी सब कुछ के सामने, कुछ भी हम उससे छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपा सकते। अब इसने अपने दिल में सोचा, उसने कहा, नो, अगर ये खुदा का बेटा होता तो इसे पता होता कि ये औरत किस तरह की है, ये जो है ये खुदा का बेटा नहीं है। अब यीशु मसीह ने जान लिया कि शमौन मेरे मतलब क्या सोच रहे, तो यीशु मसीह ने कहा, शमौन सुनो, समझने, अगर आप चाहते हो आपके घर में आए तो वो कुछ उम्मीद भी रखते हैं, वो आपके रिस्पॉन्स का वेट करते हैं, वो देखते हैं कि जब आपके घर में आते हैं आप क्या करते हो। आमीन। अभी यीशु मसीह ने कहा, शमौन देख, मैं तेरे घर में आया, तूने तो पानी नहीं लेके आएगा मेरे पांव धो। इसका मतलब यीशु मसीह के दिल में था कि जब मैं शमौन के घर में जाऊंगा तो जिस तरह लोग मुझे जानते, मैं खुदा का बेटा हूं, लोग नबियों के पांव धोते थे, तो मैं तो नबियों को भेजने वाला हूं, मैं तो नबियों को पैदा करने वाला हूं। तो जब मैं शमौन के घर में जाऊंगा वो भी मेरे पांव धोएगा। उसे कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव नहीं धोए। समझा रही? उसने जब से वो आई है वो अपने आंसुओं के साथ मेरे पांव को, अब सुनो, यीशु मसीह के ज़हन में ये था कि वो मेरे पांव धोएगा। समझ आ रही?
अब शमौन खामोश है। शमौन ने तो बनाया था कि मेरी बल्ले बल्ले होगी कि बड़ी बात है जी। शमौन जो है वो यीशु के साथ मिलने गया है, यीशु उसके घर गया तो मैंने देखा ही नहीं। शमौन भी बड़ा आदमी है, इसलिए बड़े आदमियों के साथ मिलता है। उसकी इंसल्ट हो गई, बजाय कि यीशु उसके घर में आए, उसकी इज्जत हो, उसकी इंसल्ट हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई सबके सामने। अब जब यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे घर में आया, तू क्या सोचता है, मैं तेरे घर में आया, तूने पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, तो शमौन ने इस तरह सर नीचे कर लिया, शर्मिंदा हो गया। सुनो, आप यीशु को अपने घर में किस लिए बुलाते हो? अपनी शर्मिंदगी के लिए या शर्मिंदगी को खत्म करने के लिए? और वो शर्मिंदा हुआ, उसने यीशु मसीह के जब बालों से पांव पहुंचे तो यीशु मसीह ने उसे खड़ा किया और कहा शमौन देख, जिस तरह उसके गुनाह ज्यादा थे, उसने मोहब्बत भी उसी तरह ज्यादा दिखाई। मैं आया, तूने पानी नहीं लेके आया, तूने पांव पहुंचने के लिए टॉवल नहीं लेके आया, मैं आया और तू बैठ गया। इसी तरह जब सुनो, जब यीशु आया तो जिस तरह यीशु बैठा, शमौन भी जाके बैठ गया। अब शमौन ये समझता था कि मैं बड़ा आदमी हूं, जो मेरे नौकर है वही काम करेंगे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। जहां पे यीशु बैठा वो भी बैठ गया साथ में। लिखा है यीशु मसीह ने उससे कहा और सबके सामने कहा, ये नहीं कि अलग अलग जाके कहा, सबके सामने कहा। शमौन क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो यीशु मसीह ने शमौन से कहा था, शमौन वो सोच रहा था, उसने बोला नहीं। आप सोचोगे मूवी में तो वो बोल रहा है, ऐसा बोला नहीं था, उसने अपने दिल में सोचा था। अब जब सबके सामने यीशु मसीह ने कहा तो वो खामोश है, क्योंकि उसकी ये मिस्टेक थी। नीचे जाए, अब पीछे। अब यीशु मसीह जब आपके घरों में आता है तो जिस तरह वो शमौन से ये धोखा रखता था कि मैं इसके घर में जाऊंगा तो ये मेरे पांव धोएगा, मेरे पांव को पहुंचने के लिए एक टॉवल लेके आएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एलीशा जो एलिया के पांव हाथ दिलाता था, हाथों पे पानी डालता था। हाँ ये ना, इसका मतलब कि नबियों को वेलकम इसी तरह किया जाता था। जब वो घर में आते थे तो उनके पांव धोए जाते थे, उनके हाथ धुलाए जाते थे। आज भी ऐसी चंद फैमिली है जिनमें जाता हूं मैं, तो जब मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूँ हैंड वॉश करने के लिए, तो पीछे टॉवल लेकर साथ खड़े होते हैं इस तरह। और बिलीव करो उन घरों में मेरी फीलिंग कुछ अलग होती है। जब वो एक काम करते तो अंदर से एक निकलते। और कुछ ऐसी भी फैमिलीज हैं जिनमें जब हम जाते हैं तो कहते हैं भाई जी को तौलिया मिल जाएगा, अलग है वो शमौन की तरह। और वो फैमिली जो लेके खड़ी होते हैं ऐसे, मैं फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ बरकत किस चीज से मिलती है। जब वो पीछे पीछे लेके आते हैं तो एक फैमिली में जाता हूँ, मेरी वाइफ और मैं भी पिछले दिनों गए, उदाहरण को बड़ा बनाया, सही ठीक ठाक, वो सब कुछ दुनिया का सब कुछ उनके पास है। जितनी बार मैं उनके घर में गया हूं इसी तरह होता है। हैंड वॉश करने एक लड़का स्पेशल पीछे टॉवल लेके आते हैं, अभी मैं हैंड वॉश के किस तरह मुड़ता हूं, साथ में खड़ा है बस। ये एक अलग फीलिंग उनके काम देख देख के अंदर से एक दुआ निकलती है। आज भी यीशु मसीह आते हैं, आप भी जब आज बुलाते हो कि यीशु मसीह मेरे घर में है, अब जब ख्वाहिश रखते हो तो वो आता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं, हम उसे पहचानते नहीं। जब तक आप पहचानोगे नहीं, शमौन की तरह इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, इज्जत नहीं मिलेगी। शमौन ने पहचाना नहीं, नो ये खुदा का बेटा भी हो सकता। अगर ये खुदा का बेटा होता तो इसे पता होता ये औरत जो इसके पांव में गिरी है ये कितनी गलत औरत है, ये किस तरह का कैरेक्टर रखती है। नो, ये खुदा का बेटा नहीं। और वो औरत आंसू बहा रही है, इस तरह आंसू बहा रही है। जब यीशु मसीह शमौन से बात कर रहे थे
तब भी वो औरत खामोश है, वो बस आंसू बहा रही है। ओ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने वो क्यों किया, मैंने उसके साथ क्यों रिलेशन बनाया, मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे खुदा की कवानीन, खुदा के हुक्मों को मानना चाहिए था, मैंने क्यों खुदा की बात को रद्द किया, और मुझे खुदा के साथ रहना चाहिए, क्यों मैं इतनी देर से गुनाह कर रही हूँ। इस तरह की बातें उसके ज़हन में चल रही थी, और जब इस तरह की बातें उसके ज़हन में चल रही थी तो वो रोती जा रही थी। हम सोच सकते, मैं कह सकता हूँ यकीन के साथ, आज भी जब हम स्टेज पे रोते हैं, मैं ज्यादातर इसी बात से रोता हूँ, और खुदा तूने मुझे शुरू ही से क्यों अपने लिए नहीं चुनी, शुरू ही से मैन ऑफ गॉड क्यों नहीं, जो गलतियां 18 साल मैंने पहले की क्यों मुझसे हुई, और खुदा इतनी खूबसूरत जिंदगी बना दी तूने। तो यही चीजें सोच के फिर आंसू निकल गए। आमीन। अब एक कैरेक्टर में और मिलता है बाइबल मुकद्दस में, सुनो। पहली बार जब यीशु मसीह आपके घर में आए तो आपको उससे पहचानने, और आज यीशु मसीह इस तरह डायरेक्टली आपके घर में नहीं आएंगे कि आपके सामने खड़े हो जाएंगे, हाँ जी मैं यीशु मसीह, तुमने बुलाया सी तो मैं भी आ गया हूं, ऐसे नहीं आएगा। उसे कहा जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। इसका मतलब कि जब आप उसे बुलाते हो वो अपने बुलाए हुओं को भेजता है, अपने बुलाए हुओं के बीच में होकर आपके घर में आता है। जब आप उससे बुलाते हो तो वो इस तरह नहीं आएगा, जिनको उसने बुलाए वो उनमें होकर आपके पास आएगा। और अगर आपने उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरह का देना चाहिए, और अगर आपने उस तरह यकीन नहीं किया, आप दुआ करते हो ओ खुदा यीशु मेरे घर में आ, अगले दिन एक पास्टर आपके घर में आ गया, दरवाजा ठक ठक, ये कौन, मैं पास्टर, आज ठीक है आज बैठो भाई, कितने औकात है। अब रिस्पॉन्स देखो, अब यीशु मसीह हैरान होता है कि 10 दिन से ये दुआ कर रही है मेरे घर में आ, जब मैं घर में आया हूं तो इसका रवैया किस तरह है। ठीक है जी, हाँ ठीक है, काल नहीं रही हो, ठीक है, हाँ 1 मिनट बाजी मैं तुम दोबारा कर रही, बस पानी जान लगे, पानी पर जाना भी ना हो, कोई कह रहे बस पानी जान लगे मौन लगी है, पानी में सोचता मैं कह नहीं मैं जा रहा, बाजी की गल सुन क्या था, अच्छा हाँ ठीक है, किसी कारण गल चलो, फिर वही प्रे स्टार्ट, और खुदा तुम मेरे घर में आ, खुदा कहते हैं किस तरह के, जब गया कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जब मैं गया मुझे पहचाना नहीं, जब मैं गया मोहब्बत दिखाई नहीं, जब मैं होके आ गया हूं तो फिर आ रहे, फिर दुआ की, फिर अगले दिन पारी आ गया, फिर अभी पता गवांढिया ने पारी पता नहीं रोज ही साढ़े टुरिया रहते, तुम रोज ना दुआ करो यीशु मसीह साढ़े घर आओ, रोज ना साढ़े घर समझ आ रही मेरी बात। जब नबी ऐसे अतीक में आप देखते हो, जब नबी लोगों के घर में जाते थे तो इस तरह लोग अपने घरों में खड़े रहते थे, इस तरह की खुशी होती थी कि जिस तरह कोई शादी का इवेंट है इस तरह खुशी मनाई जाती थी, इस तरह लोग खुश होते थे कि जिस तरह कोई सबसे अजीज हमारे घर में आ गए, ये सबसे बड़ा कोई हमारे घर में आ गए, इस तरह खुश होते थे। अरे पता क्या होता है, पास्टर का अच्छा आ गया, उधर प्रोने भी आए नहीं, प्रोने लिए अच्छा खाना बनाए, पास्टर बस सिर्फ बैठो मंगवा लेने रोटी, जहाँ पुत्र तो चने के 2-3 रोटियां लेके आ, एक फैमिली में मेंबर के कदार दे रहा दिल से कह रहा है और पादरियां तो प्रोने बड़ा अच्छा नहीं लगता, चुप रहो तो आज से सुनो, अब कभी बरकत नहीं ले सकते। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा
शागिर्दों के पांव धोए तो उसे कहा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो, ये फर्ज है तुम पर। इसे फर्ज है ये कि जब कोई मैन ऑफ गॉड, कोई खुदा का खादम जिसे आप मानते हो कि ये मर्द खुदा है, ये खुदा का खादम है, आपके घर में आए तो ये फर्ज है, और जो भी फर्ज है वो मिस नहीं की जाती। आमीन। प्यो गाला भी कटे अजे नु घरों नहीं कटदे, पता क्यों? ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ फर्ज। जो चीजें फर्ज होती हैं उनको मिस नहीं किया जाता, उनको छोड़ा नहीं जाता। कलीसिया सुनो, वो चीजें नहीं छोड़ी जाती जो फर्ज हैं। और यकीन करो, आप दुआ करते होंगे, आप हदिया देते होंगे, आप यीशु को अपने घर में बुलाते होंगे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अक्सरियत ज्यादा उन लोगों की है जो यीशु मसीह को पहचानते नहीं जब वो उनके घर में आता है, पहचानते नहीं यीशु मसीह को। आप पहचानो उसे। कई फैमिली से हाँ मेरा दिल करता है पाकिस्तान के पैर तो हाँ, पर ना फिर मैं क्या पता नहीं की कहने। अब वो आपका दिल नहीं कर रहा, आपकी बरकत के लिए खुदा आपके अंदर ये बात रख रहे हैं। रसूल जब जाया करते थे, नबी जब जाया करते, बाइबल मुकद्दस में लिखे जब यीशु मसीह इब्राहिम के घर में गए, खुदा इब्राहिम के घर में गए तो इब्राहिम ने अपने नौकरों से क्या कहा? उन्हें क्या पलिया होया वछड़ा की करो ऐ नहीं, उन्हें क्या डिंगा जा जी लत टुटी है और जिन्हों फाला जो है एक साइड तो या वो जो पिछली दो लत्तां तो रेड रेड के टुरदा उन्होंने कर दो जी बात। ऐसा नहीं उसने कहा, उसने क्या पहला हुआ, इसका मतलब जो सबसे अच्छा है वो इनके लिए क्या करो। मैं बहुत कम इस तरफ फैमिली में जाता हूँ, है ना, समझे जो मैं अपने लिए सुना रहे हैं, ये आपकी बरकत के लिए आपको बता रहा हूँ। अरे जब आप उससे बुलाते हो, मान लो आपने आज संडे को ब्रेक की चर्च में और खुदा तुम मेरे घर में आ, और मंगल बुध को तुम्हारे घर खादम आ गया तो जहन में रखो ये उसने मेरी दुआ सुन ली है। मैंने उससे कहा था कि तुम मेरे घर में आ, तो वो अपने बुलाए हुए के बीच में होकर मेरे घर में आए। आमीन। अब बाइबल उसमें से लूका की नहीं निकाले मेरे साथ। उन्नीस बात समझ आ रही है? मैं क्या समझ आ रही है? जो मैन ऑफ गॉड का लिखा रहा है, मेरे बड़े प्लान है, बिग प्लान है उस आदमों के लिए। जब खुदा मुझे घर देगा बड़ा, तो मैंने कौन सी जगह किस तरह की उनके लिए बनानी है। जो जगह उनके लिए होगी वो सबसे हटकर और अलग होगी, सबसे हटकर। उनके लिए हर चीज अलग होगी क्योंकि वो सबसे अलग है। आमीन। वो मेरे लिए दुआ करते हैं, उनके कहने से आसमान खुल जाता है। जब वो मेरे लिए दुआ करते हैं तो खुदा मेरी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए उनकी जगह मेरे दिल और मेरे घर में अलग होगी। आमीन। आज ज्यादा लोगों के पास बरकत इसीलिए नहीं है, उनको पता नहीं। अब खुदा उनके कलाम में लिखा है, वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो वसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसने देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। वो उसी राह से जाने को था। अब ये वसूल लेने वालों का सरदार था, वसूल पहन के
टैक्स लेने वालों का सरदार था। जिस तरह आज आप टोल प्लाजा पे देखते हो टैक्स लेते हैं, अब मान लो कि जिस तरह गुजरांवाला के जो टोल प्लाजा है उन पे जितने लोग टैक्स लेते हैं उनके ऊपर जो एक लीडर मुकर्रर किया जाए, ज़कई वो था, ये मसूल यानी टैक्स वाले। और हम सोचते कि मसूल अगर टैक्स से खुदा के उनको नफरत क्यों करता था, क्योंकि वो ज्यादा लेते थे लोगों से। अगर 50 बनते तो 400 ले लिया, अगर 400 बनते हैं तो 1000 ले लिया, इस तरह वो टैक्स लिया करते थे। और उनका जो सरदार था, और जब आपको पता है शुरू से ऐसे चलता है, अगर पुलिस वाले ने रिश्वत लेनी है तो उन्हें सब इंस्पेक्टर को देनी पैनी है, और अगर सब इंस्पेक्टर ने लेनी है तो उन्हें SHO को, और अगर SHO ने लेनी है तो उन्हें SP को देनी पैनी। अब जो मसूल लेने वाले थे ये उनका सरदार था, और जब ये सरदार था तो वहां पे ऐसा भी होता था, आज भी होता है, जितने ज्यादा रिश्वत मिलती है पुलिस वाले उस जगह पे ड्यूटी लवाने साहब को 5000 बात दे छाड़ते हैं, साहब जी हर महीने का 5000 टाडा मेरी ड्यूटी इत्थे ला दे। अब ज़कई जो था वो इस तरह का एक कह सकते हैं सरदार था, इस तरह का एक औहदा था उसके पास। और मत्ती जो था वो भी मसूल लेने वाला था, बाइबल अभी मसूल की चुंगी से यीशु मसीह ने उसे लिया। अब इस तरह के लोग जो जब ज़कई के पास जाते थे तो यीशु की बातें शेयर करते थे। अब वो बातें सुनते सुनते ज़कई के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाओ, क्या हुआ आज एक लंगड़ा आया यीशु मसीह ने उसे ठीक कर दो, नहीं यार कौन सा, फला शहर में, फला जगह में, फला गांव में एक कोड़े को ठीक कर दिया, क्या बात है। लोग आते हैं इतने इतने साल से बीमार, यीशु मसीह जब उनके पास से गुजरते हैं वो हील हो जाते हैं, नहीं यार, सुनते सुनते इंटरेस्ट बढ़ता गया उसका। एक दिन उसे कहा मैं भी देखूंगा कि यीशु मसीह कौन है। अब हुआ क्या, ये सर ये नीचे रखो, अब मान लो इधर आओ शबाज, वो सीढ़ी लेके इधर खड़ी करेंगे, अब थोड़ा पीछे हो जाएंगे।